Well, back with the latest, we continue to track from Prayagraj in Uttar Pradesh on how the bulldozer action against mafia in the state continues. Currently, as we speak, Atiq Ahmed's aide, Safdar Ali's residence is being demolished. Dramatic visuals coming in from Prayagraj. Amir, over to you. Well, clearly now what had been promised by the Chief Minister is happening on the ground, and this is for everybody to witness. Now, people who doubted the manner in which Yogi Adityanath had stated on the floor of the House just about a few days back that all such mafias will be punished, that mitti mein mila denge sabhi mafiaon ko, that nobody will be spared as far as either Umesh Pal killing is concerned or anybody who's found associated with mafia Atiq Ahmed. That is something that is happening on the ground, and it is for everybody to witness. Now, this morning itself, the PDA team and the police force had started gathering outside this particular house. This is the Chakia area of Prayagraj. Atiq Ahmed's home had been just about a kilometer away from here. That original residence of Atiq Ahmed and his family had been pulled down a couple of years back by the authorities after certain illegalities were found therein. And Yogi government in its regime 2.0 has continued action against the mafia. But this time around on the 24th of February, the manner in which this sensational shootout took place, in which Umesh Pal, one of the prime witnesses in the Raju Pal murder case that happened way back in January 2005, and the manner in which two of his gunners, police constables, were also killed. The second constable, the second gunner, passed away just last evening in the PGI hospital in Lucknow. Now authorities are clearly inclined to take immediate and prompt action against all such associates of Atiq Ahmed. And this residence, which is built in an area of about 2,200 square feet, happens to be a prime property worth several crores within Prayagraj. Had been chosen after the PDA found out that the building plan wasn't approved by the PDA, the local development authority, and that there are certain illegalities, other illegalities as well that were involved. A notice was served this morning itself to Safdar Ali, who's known to be, as per police sources, a weapon supplier to the Atiq Ahmed gang, although he continued to deny that he had nothing to do with the Atiq Ahmed gang. But clearly, since authorities have details about his association with the gang, and also illegality has been found out as far as building plan of his residence is concerned, it finally is being demolished. So this from early morning itself, this area had been barricaded. Additional police forces were called in because this happens to be a stronghold, an area of influence of Atiq Ahmed, and there still could be sympathizers who could actually become an impediment in the work of PDA and the police here, which was why heavy police deployment. I'll ask the VJ to pan and show you. Heavy police deployment has been done here to ensure that everything is done as per norms, as per law, and that nothing goes amiss as far as this endeavor of the local authorities and the police is concerned. Initially, we saw 3 JCBs coming in here who actually pulled down the outer facade, the front of the building, and now this heavy machinery, bigger JCB called in, which over the last half an hour or so has finished more than 50% of the demolition work that has to be done here. So clearly, while the Chief Minister promised prompt action against all such people who were involved along with Atiq Ahmed, this is something that we are seeing on the ground, very palpable, and people here, curious people, onlookers had been gathering here from early morning itself after they'd known that this house has been chosen finally for demolition. But people watching on TV on their homes should be satisfied with the kind of immediate action that the government has taken against all such people who were involved with Atiq Ahmed, and whether he was involved with Umesh Pal. The government continuing with its tough stand against conspirators in the Umesh Pal murder case. Stay on with us, Samir. We have Shatrul Hassan of the Samajwadi Party joining us on the phone line. Hassan साहब, क्या कहेंगे? कल जफर अहमद
के खिलाफ ऐसा बुलडोजर एक्शन देखा गया था उनकी प्रॉपर्टी पे, और आज सफदर अली जो वेपन सप्लायर भी कहे गए हैं आतिक अहमद के। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल है कि जब बुलडोजर 2006 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 6 साल से लगातार बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद भी प्रयागराज जैसी घटना हो जाती है, कानपुर देहात जैसी घटना हो जाती है, तो हम समझते हैं कि बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। गुंडे माफियाओं पे उत्तर प्रदेश में कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, उनके मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाइए, उनको सजा दिलाइए, ये कानून है। और भारतीय जनता पार्टी, उसको संविधान कानून में विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए, निसंदेह काम करना चाहिए, और अपराधी और गुंडे माफियाओं पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पर ये तो मिस्टर हसन, असेंबली में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे कि ये वाली कार्यवाही चलेगी और ऐसा एक्शन लिया जाएगा, कोई भी माफिया जो उत्तर प्रदेश के स्टेट में काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा, उसके खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। ये उन्होंने असेंबली प्रेमाइसेस पे ही बोला था हसन साहब। देखिए, असेंबली में तो योगी जी क्या क्या बोलते हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बोलते हैं कि इंग्लैंड में किसी के होटल हैं, किसी के टापू हैं, क्या वो साबित कर पाएंगे? इस असेंबली में तो खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ये भी बोलते हैं कि 45 में 56 नियुक्तियां यादवों की हो गई थी, क्या वो साबित कर पाएंगे? खैर, वो एक अलग सवाल है। लेकिन जब अगर आप कोई कानून, हम तो कहते हैं आप सरकार में 6 साल से कानून बदल दीजिए ना, देश को संविधान से ही चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपराधियों, गुंडे माफियाओं के खिलाफ जब उन पे मुकदमा लिखे तो उनका घर गिरा देना चाहिए, उनको नष्ट नाबूद कर देना चाहिए, उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए, तो आप सरकार में आप कानून बदल दीजिए, आप कानून ले आइए, ऐसा संविधान लाइए, ऐसा लॉ होना चाहिए कि माफिया है, गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, तो लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा डिमोलिशन उनकी प्रॉपर्टी पे किया जाएगा। वी ऑल्सो हैव राकेश त्रिपाठी जी भाजपा से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, कैसे हसन साहब को रिप्लाई करेंगे? देखिए, जब भी कहीं बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी को तुरंत दर्द होना शुरू हो जाता है। एक बात स्पष्ट है कि कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी है, बेनामी संपत्ति है, अतिक्रमण करके बनाई गई है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बनाई गई है, तो निश्चित तौर पर उसको गिराया जाएगा। ये बिल्डिंगें इलीगल हैं, कार्रवाई लीगल कार्रवाई लीगल नहीं है, या अपराधियों के लिए कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? ये अपराधियों के द्वारा वकील राकेश त्रिपाठी, मैं बता दे रहा हूं, आप परेशान सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हसन साहब, त्रिपाठी जी को अपना पॉइंट आपके सामने रखने दीजिए। मैं समझ गया उनका सवाल। एक बात बताइए, ये जो आप प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला रहे हैं, ये इसलिए चला रहे हैं कि प्रयागराज जैसी घटना हुई है, या आप इसलिए चला रहे हैं कि प्रॉपर्टी इलीगल थी? पहले हाँ नाम जवाब, इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। 50 से ज्यादा अपराधियों की 1200 करोड़ की संपत्तियां जो हमने आपने सवाल पूछ लिया, उन्हें जवाब देने दीजिए। हसन साहब, कोई भी अपराधी अगर जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाता है, अतिक्रमण करता है, बेनामी संपत्तियां इकट्ठी करता है, तो ऐसी सभी संपत्तियों को नेस्तनाबूद करेंगे, ऐसी सभी संपत्तियों को जमींदोज करेंगे, ऐसी सभी संपत्तियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रावधान है इसका? क्या प्रावधान? कहाँ पढ़ा? कानूनी प्रावधान। अरे भाई, ट्यूशन लीजिए, पढ़िए। कानून में पढ़ा रहे, आप तो वकील हैं, आइए ट्यूशन लीजिए, पढ़ा देंगे। अरे भाई, आइए ट्यूशन लीजिए, पढ़ा देंगे। आइए ट्यूशन लीजिए, हम भी वकील हैं। अब ये पढ़ाई विश्वविद्यालय, अरे कहाँ पढ़ाई विश्वविद्यालय में की जाती है? आपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? बताइए ना। अरे भाई, कहाँ जाइए ना हाई कोर्ट, जाइए ना। हसन साहब, त्रिपाठी साहब, आपकी आवाजें दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं ऐसे, क्योंकि आप एक दूसरे पे बोल रहे हैं। हसन साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा है, उनको जवाब देने दीजिए। त्रिपाठी जी, देखिए, मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है, अगर सपा को लगता है कि ये कार्रवाई इलीगल है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वो जाकर के इन कार्रवाइयों को रुकवा सकते हैं। बहुत प्रयास भी किया है कि बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को वाजिब और जायज माना है, इसीलिए किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत तरीके से हो रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग कान खोल करके सुन लें, अपराधियों की संपत्तियों को बचाने के आपके सारे प्रयास नाकाफी साबित होंगे, क्योंकि जहां कहीं भी अपराधियों की संपत्तियां हैं, जो बेनामी है, जो गरीबों की संपत्तियों को लूट कर बनाई गई है, जो दहशत बनाने के लिए बनाई गई है, उन सब पर बुलडोजर चलेगा और वो सब जमींदोज की जाएंगे, वो सब मिट्टी में मिलाई जाएंगी।
हसन साहब बताइए, बुलडोजर तो पहले भी चलता था, अब उत्तर प्रदेश की सरकार के नेता आके सामने बोल रहे हैं कि गलत करोगे, लॉ को तोड़ोगे, बुलडोजर चलेगा। क्या लॉ है, क्या लॉ है? हम तो पूछ रहे हैं ना, राकेश त्रिपाठी को पता हो, इनकी पार्टी को पता हो। अभी ये बोल रहे हैं आपके फोनों पे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है जायज है, लीगल है। नहीं, ये कानून बताए ना, मैं तुमसे कानून पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना, मैंने कहा कि आपका लीगल सेल कमजोर है, आपका लीगल सेल कमजोर है, आपके अधिवक्ता कमजोर है। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि डिमोलिशन नहीं रोकी जाएगी, पर लॉ फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था हसन साहब। नहीं, लॉ फॉलो, डिमोलिशन पे रोक नहीं डाली थी। नहीं, कोई रोक कहीं नहीं है। ये तो कानून है कि अगर कहीं कोई इलीगल प्रॉपर्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए ना ये कार्रवाई क्यों हो रही है। ये कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन था इसलिए हो रही है, या जो गुंडे अपराधी हैं उनकी संपत्ति को गिराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो बातों में विरोधाभास है, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपने विरोधाभास नहीं। आप जानबूझकर के अपराधियों के त्रिपाठी जी, इलीगल प्रॉपर्टी है इसलिए गिराई जा रही है, या माफिया है, गुंडे हैं, उनकी प्रॉपर्टी है इसलिए गिराई जा रही है? त्रिपाठी जी, माफिया, गुंडे, अपराधी, इलीगल प्रॉपर्टीज है, सारी इलीगल प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी लीगल नहीं होती है। माफियाओं की प्रॉपर्टी लीगल ही होती है, माफियाओं की प्रॉपर्टी लीगल होती है भाई। आप जो गरीबों से लूट करके, खसोट करके आलीशान अट्टालिकाएं बनाई है ना। हसन साहब, पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं, नोटिस भी दिए गए हैं पहले। अगर हम कल जफर अहमद की भी बात करें, जफर अहमद की, उनको भी पीडीए कहती है कि बहुत पहले नोटिस दिया गया था, तो इलीगल प्रॉपर्टी है, ये तो तय है सर पीडीए के हिसाब से। हसन साहब, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर इलीगल प्रॉपर्टी है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। कानून है, कानून अपना काम करेगा। तो वही त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आपको आपत्ति किस बात से? नहीं कह रहे हैं, उमेश त्रिपाठी जी दो बातों को एक साथ मिला रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं ना, ये तो देखिए गुंडे माफियाओं के लिए कानून है, और अगर आपको गुंडे किसी पे मुकदमा लिखे, उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना है, आप ऐसा कानून को विधानसभा में ले आओ, पास करा लो, और फिर लगेगा कि हाँ देश कानून से चल रहा है। लेकिन ये मन मर्जी थोड़ी है कि कोई भी सरकार आएगी वो कानून अपने हाथ में ले। हमारा कहना है गुंडे माफियाओं पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कानून आप बनाइए ना, लेके आइए ना विधानसभा में कानून। Okay, thank you Mr. Hassan and Mr. Tripathi for speaking to us here on Times Now. Let me also go across to Mr. Dinesh Sharma, former Deputy Chief Minister, joining us on the phone line. Mr. Dinesh Sharma, we were just hearing in from the BJP and from the Samajwadi Party, and once again taking it back to the debate that has been ongoing for the last so many months, because the UP Sarkar has stated very clearly its no tolerance policy as far as these kind of crimes in the state are concerned. And taking it from where the UP Chief Minister left, mitti mein mila denge, said it in the assembly premises. This is the bulldozer action being witnessed today, sir. माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी वक्तव्य है वो माफिया तंत्र और माफिया मानसिकता के विरुद्ध में है। माफिया जनता का उत्पीड़न ना कर सके, ये सरकार की प्राथमिकता और सरकार की वचनबद्धता है, और सरकार उसी के अनुसार जो भी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, कठोरतम कार्रवाई, वो उनके खिलाफ कर रही है। अब दर्द इसमें उनको हो रहा है जिनका जो हाथ था इनके ऊपर था, जिनका प्रोटेक्शन, जो लोग इनको प्रोटेक्ट करते थे, आज उनको खराब लग रहा है। विपक्ष को तो जो विपक्ष विभिन्न प्रकार की बातें अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में करते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की हत्या की गई, एक दबे कुचले व्यक्ति की जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, उसकी माफिया तंत्र ने हत्या करी। और अगर माफिया तंत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें पेट में दर्द क्यों विपक्ष को हो रहा है? जो भी कानून है वो अपना काम करेगा। माफिया तंत्र अगर उठने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप में उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से है, वो आगे भी रहेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जो भी कार्रवाई हो रही है उससे प्रदेश में सकारात्मक एक पहल हुई है, लोगों में विश्वास जगा है कि सरकार चाहे जितना भी सशक्त माफिया तंत्र का जाल हो, उसके खिलाफ वो उसको भेदने में, उसको नष्ट करने में सरकार कामयाब है और पहले की तरीके से वो कार्रवाई कर रही है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रशंसनीय कार्य है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में वचनबद्धता जाहिर की थी
उसी की परिणति है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और चलनी चाहिए, क्योंकि गलत काम कर रहा है माफिया और ये कानून के दायरे में है। आप बने